Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do question E of revision chapter Lines and Angles chapter 9. ठीक है, answer the following. तो यहाँ पे answer the following है. In the given figure एक दिया हुआ है. AOC is a straight line and OB is a ray. Calculate the following. तो यहाँ पे देखिएगा AOC एक स्ट्रेट लाइन है एंड OB इज द रे सेपरेटिंग दिस टू एंगल्स. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्रीज. दैट मीन्स AOB और BOC होगा 180 डिग्रीज. तो कैलकुलेट द फॉलोइंग. तो कैलकुलेट करना पड़ेगा एज आस्क्ड. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए में क्या पूछा है? यस, ए में पूछा है angle AOB, that means calculate angle AOB if angle BOC is equal to 100 degrees. ठीक है, तो AOB plus BOC is equal to 180 degrees because AOC is a straight line. Reason is AOC is a straight line which is given. Angle BOC plus angle AOB is equal to 180 degrees. In place of angle BOC, we'll put 100 degrees which is given here. तो 100 plus angle AOB is equal to 180 degrees. Let us take 100 from the left hand side to the right hand side, opposite side में. तो प्लस 100 है, माइनस 100 हो जाएगा. तो 180 माइनस 100. ठीक है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 100. 0 माइनस 0 इज 0. 8 माइनस 0 इज 8. 1 माइनस 1 इज 0. तो एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. तो वी हैड टू फाइंड आउट एंगल AOB विच इज इक्वल टू 80 degrees. Now again we have to consider this figure. Calculate angle AOB if angle BOC is equal to 2 times angle AOB. Okay, we know that again angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degrees. Angle AOB plus what is angle BOC? BOC is given as 2 times in angle AOB. So in place of angle BOC we have to write 2 angle AOB which is equal to 180 degrees. तो 1 plus 2 क्या होगा? 3. तो 3 times angle AOB is equal to 180 degrees. So we'll take this 3, coefficient 3, to the right hand side. Since it is multiplied here in the opposite side, it will be divided in the right hand side. तो 180 upon 3 होगा. Angle AOB is equal to 180 upon 3. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, यानी कि 60 डिग्रीज. देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. नेक्स्ट, एंगल AOB एंड एंगल BOC. फाइंड एंगल AOB एंड एंगल BOC. ओके, एंगल AOB इज इक्वल टू x एंड एंगल BOC इज इक्वल टू x प्लस 20. इन टर्म्स ऑफ x दिया है. ठीक है, वी नो दैट एंगल AOB plus angle BOC is equal to 180 degrees. Yes, but we know that angle AOB जो है वो x है, angle BOC is x plus 20. Okay. तो angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degrees. In place of angle AOB x, in place of angle BOC is x plus 20. इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. x plus x is 2x, 20 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. है कि नहीं? दोनों एंगल मिला के 180 डिग्रीज. तो ये इक्वेशन आएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो 20 है तो इसे हम लोग अपोजिट साइड में लेकर आते हैं. प्लस 20 है तो माइनस 20 हो जाएगा. तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 20. 0 माइनस 0 इज 0. 8 माइनस 2 इज 6. 1 माइनस 0 इज 1. सो 2x इज इक्वल टू 160. x इज इक्वल टू 160 अपॉन 2. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0. तो x इज इक्वल टू 80. अगर हमें x मिला है दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू x. तो एंगल AOB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 डिग्रीज हो गया. तो BOC फाइंड आउट करना है. तो BOC क्या है इन टर्म्स ऑफ x प्लस 20. तो एंगल BOC इज इक्वल टू x प्लस 20 विच इज इक्वल टू x की जगह पे 80 प्लस 20. 80, 0 प्लस 0 इज 0. 8 प्लस 2 इज 10. तो 100. दैट मीन्स एंगल BOC इज इक्वल टू 100 डिग्रीज. ठीक है,
तो ई क्वेश्चन का ये ई क्वेश्चन में भी 2 है 1 and 2, तो ये 1 का हो गया. दिस फिगर इज फॉर 1. Okay, related to this figure we have to calculate the angles. So we'll see D. Yes, D में देखिएगा angle AOB and angle BOC. We have to find angle AO, calculate angle AOB and angle BOC. If angle AOB is to angle BOC is equal to 2:3. तो ratio दिया है. They have not given us the actual values, but their ratios are given. So I have to find the actual values. We know that angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degrees. From the figure we know that, ना 180 degrees. तो in place of angle AOB और BOC हमें डालना है ratios. तो यहाँ पे 2:3 है. तो what we will do is we'll take these angles as 2x and 3x. ठीक है. So 2x होगा AOB बस दिया है plus 3x is BOC is equal to 180 degrees. तो 2x plus 3x is nothing but 5x which is equal to 180. तो 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं तो डिवाइड करें. तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचेगा 30 होता है, 5 6 जा 30. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 36 डिग्रीज. अगर x 36 डिग्रीज मिला तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स. 2 इंटू 36 होगा. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो 72 डिग्रीज. एंगल BOC इज इक्वल टू 3x. 3 इंटू 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, 108. यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू 72 डिग्रीज. एंगल BOC इज इक्वल टू 108 डिग्रीज. ठीक है. दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्रीज आना चाहिए. तो 8 प्लस 2 इज 10, 7 प्लस 1 इज 8 और 1, तो 180 डिग्रीज आ जाता है. तो ये वेरीफाई भी हो गया कि दोनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज. ई सेम फिगर यूज करना है. विल यूज द सेम फिगर. एंगल BOC फाइंड आउट करना है. इफ we have to calculate angle BOC if angle AOB is equal to x minus 15 and angle BOC is equal to 2x. We know that angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degrees. Yes. So in place of angle AOB we have to put x minus 15. Angle BOC की जगह पे 2x is equal to 180 degrees. तो ये दोनों इक्वेट कर लेंगे. तो x plus 2x is 3x minus 15 ऐसे का वैसा is equal to 180 degrees. तो 3x को वैसे का वैसे रखते हैं. माइनस 15 जो है वो ऑपोजिट साइड में आते ही 15 होगा प्लस 15. तो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 15. इन दोनों को ऐड करते हैं. 0 प्लस 5 इज 5, 8 प्लस 1 इज 9, 1 प्लस 0 इज 1. तो 3x इज इक्वल टू 195. x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया है, ऑपोजिट साइड में डिवाइड करेंगे. 195 अपॉन 3. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एक यहाँ पे जाएगा तो 15 होगा. 3 5 जा 15. That means x is equal to 65 degrees. Now we have to find angle AOB which is x minus 15. तो x के जगह पे 65 minus 15 होगा ना, क्योंकि x की जगह पे 65 डाल देंगे. तो 65 minus 15 क्या होगा? 5 minus 5 is 0, 6 minus 1 is 5. तो angle AOB is equal to 50 degrees. Now angle BOC is equal to what? 2x. So 2 into 65 करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि x इज इक्वल टू 65. तो 2 इंटू 65. एंगल BOC इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 प्लस 130 डिग्रीज. अगर दोनों को ऐड किया BOC प्लस एंगल AOB को तो क्या आएगा? 130 प्लस 50, 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 3 इज 8, 1. तो 180 डिग्रीज आ जाता है. दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्रीज है ना. AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्रीज होना चाहिए. तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ई मेन का सब क्वेश्चन 1, उसमें सब क्वेश्चन 5 जो है, 5 सब क्वेश्चन अप टू ई थे, वो खत्म होते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच.